एक डाइट हो गई, सिर्फ आपने प्रिजर्वेटिव प्रोसेस पैकेज फूड बंद किया, आपने शुगर बंद किया। एक वो बेसिक सिंपल है। अलग अलग गाइडलाइंस कहती हैं कि 2 से 3 साल के नीचे बिल्कुल जीरो स्क्रीन टाइम, नो मर्सी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि 2 से 3 साल, फर्स्ट 1000 डेज एब्सोल्युटली नो स्क्रीन टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि बच्चों की नेचुरल डेवलपमेंट हो। इंपॉर्टेंट है 100%। इसमें आप कोई कंजूसी नहीं कर सकते, कोई चोरी नहीं कर सकते। Welcome to Creative Minds, where we bring you insights from the forefront of medical expertise. I'm Ankur, an occupational therapist, and I'll take you to the journey today with a remarkable guest who has dedicated his whole life transforming the countless neurodiversified kids. Our guest today is none other than Dr. Deepak Gupta, a trailblazing physician renowned for his groundbreaking works with child and adolescent and psychiatry. With more than 25 plus years of experience, he not only changed the lives in India but also across the globe. This podcast will definitely help you not only with the medical professional or paramedics or any other health backgrounds. This podcast will definitely appeal to the parents who are dedicated with their kids and want to work with them. And apart from that, all the people who want to accumulate their knowledge. So Deepak sir, first of all, it's our privilege sir, to sit in front of you and have a discussion like this. So sir, how are you? I'm absolutely fine, and first of all, I'm very thankful to you and the Creative Mind for inviting me for this podcast. Thank you sir. Thank you very much once again. Okay sir. So sir, we have a lot of suggestions from different parents, different doctors who are working with their kids, and like as we know, the child with special needs, they are undergoing a lot of things. So there are few queries apart from the therapies or interventions which they are taking. They have a lot of queries like related to blood tests, medications and everything. So our first question will be like, what are the symptoms that in a child that suggests the need for a blood test? See, as a biomedical practitioner and working with children with neurodevelopment disorder, especially autism, so my thing is that when a parent comes to me, I first of all, I after taking a good history, I try to identify the symptoms which correlate with those deficiencies or those other factors. So I try to identify it. So in that way, after identifying those particular symptoms and then the physical examination, I'm able to identify that these particular tests will be helpful for the child. Absolutely. So for example, if a child is restless, overactive and having sleep issues, so I know magnesium deficiency may be a factor. That's what. If I know a child having a poor immunity or a gut issues or having on examination having a nails which are a little brittle or having white spots on the nails, then I know it could be a zinc deficiency. So in that way, I try to correlate through my history, from the parents, in detailed history, and also with the clinical examination. Depending on that, I am able to recommend them particular test. That's what. If the child is having constant allergy issues and the poor immunity, and along with that, if we see in the examinations, if you see their shining lines on the nails are there, or their dark circles under the eyes are there, their dark circles under the eyes are there, those things are there, and along with that, with the constantly having allergy issues, sleep problems are there, they're restless, then I know child has allergy issues. So then recommending those allergy test like IgE or allergy Phenotype or specific food allergy test, all those are helpful. Same way for the gut issues also. If they have those particular things, then recommending those particular tests as per the child, I recommend them. So it's basically on the child specific, and every child has a specific need. So it is tailor made to the child. The prescription is made as per the child, symptoms and the examination. Nice sir, nice. So basically इसका मतलब ये है कि हम चाइल्ड के बेसिस पे, पर्टिकुलर चाइल्ड के बेसिस पे हम ये चीज देख सकते हैं कि इसे टेस्ट वगैरह चाहिए. एब्सोल्युटली. हमें ये समझना है कि उस बच्चे के जब माँ बाप हमारे पास आते हैं, तो उस माँ बाप जब कुछ बातें बताते हैं, उनको नहीं पता होता, तो वो तो एक हिस्ट्री दे रहे होते हैं. और हम एज अ फिजिशियन वो हिस्ट्री पूछ रहे होते हैं. अब उस हिस्ट्री को बता रहे हैं वो, और हम पूछ रहे हैं. अब हमारे सवाल ऐसे होने चाहिए कि हम और इंफॉर्मेशन ले सकें. उसके बाद हमने बच्चे को देखा, और बच्चे को देख के हमें लगा कि हाँ ये सब चीजें कोरिलेट कर रही हैं.
फिर हमने अपना फाइनल पर्चा बनाया और फिर उसने टेस्ट कराए, क्योंकि याद रखिए इन बच्चों के टेस्ट कराना आसान नहीं होता, इनके ब्लड वर्क कराना आसान नहीं होता। इसलिए बहुत बार पेरेंट्स को जब हम लिखते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वो करा नहीं पाते, और कराते भी तो कहते हैं जी सर थोड़ा सा ब्लड निकला, पूरा निकल ही नहीं पाया, क्या करें जी, थोड़े 2-4 टेस्ट लिख दो, ज्यादा मत लिखो। तो ये चीज है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज ध्यान रखना होता है, जो हम बेसिकली फेस करते हैं न्यूरो डाइवर्जेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, सो अगर हम अपने ऑडियंस को बताएं, जैसे न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन में कई इश्यूज होते हैं, जैसे ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया सर, तो इनमें पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि विटामिन डेफिशिएंसी बहुत हो रही है, कि विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, एंड बीइंग अ पेरेंट, इफ आई एम अ पेरेंट, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि ओके माय चाइल्ड इज हैविंग विटामिन इश्यूज, कि मतलब मेरे को कैसे पता लगे? देखिए, हमें 2 चीज समझनी है। जो भी हम एज ए बायोमेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी मैं विटामिन लिख रहा हूं, सप्लीमेंट लिख रहा हूं, वो मैं ADHD ऑटिज्म के लिए लिख रहा हूं एज ए बायोमेडिकल प्रैक्टिशनर, या डेफिशिएंसीज के लिए लिख रहा हूं? बहुत क्लियर है। अगर बच्चे के अंदर वैसी डेफिशिएंसीज हैं, तो आपको लगा बच्चा थक रहा है, थकान हो रही है, बच्चे को बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, उसकी इम्यूनिटी पुअर है ना, उसके नेल्स में इशू आ रहे हैं, उसके बालों में इश्यूज आ रहे हैं, उसकी स्किन में इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पे हमने सिर्फ डेफिशिएंसीज को चेक कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे के वेलबींग के लिए, जिसके लिए माँ बाप बच्चे को लेके फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। लेकिन मैं एक बायोमेडिकल प्रैक्टिशनर हूं जो ऑटिज्म और ऑटिज्म रिलेटेड कंडीशंस और ADHD के साथ काम करते हैं। तो जब मैं उसमें देखता हूं तो मैं एक अलग नजरिए से देखता हूं, करेक्ट। तो मेरे को देखना होता है कि क्या चीज है, अगर मैं उसको ठीक करूंगा, किससे ADHD और ऑटिज्म में इंप्रूवमेंट आ सकता है। जैसे ADHD में आयरन डेफिशिएंसीज का या लो फेरिटिन का बहुत एविडेंस है। तो उन बच्चे के अंदर लो जिंक, लो आयरन है, लो फेरिटिन है, आप उसको इंप्रूव करते हो तो बच्चे की इनअटेंशन इंप्रूव करता है। या इन बच्चों के अंदर लो जिंक होता है, लो मैग्नीशियम होता है, आप उनको इंप्रूव करते हो तो बच्चा इंप्रूव करता है। इन बच्चों के अंदर लो ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 अगर आप वो बढ़ाते हो तो हेल्प करता है। वेरी क्लियर। तो इस तरह हम देखते हैं, तो दोनों में एक अलग चीज है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप ADHD बच्चों के साथ या ऑटिज्म बच्चों के साथ काम करते हो, अब ऑटिज्म बच्चों के अंदर ये नहीं है कि हर समय B12 डेफिशिएंसी होती है, लेकिन अगर दूसरे बच्चों में B12 डेफिशिएंसी आएगी तो आपको देना पड़ेगा B12। लेकिन ऑटिज्म में हम B12 अलग पर्पज से दे रहे हैं। हम इसलिए दे रहे हैं ऑटिज्म में एज अ बायोमेडिकल प्रैक्टिशनर, क्योंकि हमें मिथाइलेशन साइकिल को हिट करना है। जब हम मिथाइलेशन साइकिल को हिट करेंगे B12 देके, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल्स की साइकिल एनहांस हो जाएगी। जो हमारी मिथाइलेशन साइकिल सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को फीड कर रही है, हमारे RNA को फीड कर रही है, वहां पे एनहांसमेंट आएगी। तो हम उस पर्पस के लिए दे रहे हैं, हम मिथाइल साइकिल को जो उसको एनहांस करना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाट। तो इनफ पेपर्स हैं जो कहते हैं कि इन बच्चों के अंदर मिथाइलेशन साइकिल के अंदर इश्यूज आते हैं, तो वहां इसलिए दे रहे हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, वेरी क्लियर है। दोनों का कॉज अलग अलग, दोनों का अलग पर्पस है, अलग पर्पस है, वेरी क्लियर है। तो इसलिए बहुत बार इन बच्चों में B12 लेवल ठीक होता है ऑटिज्म में, तब भी हम B12 देते हैं और हम ये बताते हैं पेरेंट्स को इसलिए नहीं दे रहे, हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी मिथाइलेशन साइकिल एनहांस हो जाए। करेक्ट। तो ये दोनों कोरिलेशन है, तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू। सर दिस इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग। ऐसे नियर फ्यूचर मेरे को दिखा बायो हैकिंग का कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बायोमेडिकल में फॉलो करते हैं। हम उस अलग अलग प्रोटोकॉल्स को लेके जाते हैं। हमारा टारगेट होता है कि हम कॉग्निशन पे काम कर रहे हैं, हम लैंग्वेज कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, हम सेंसरी इश्यूज पे काम कर रहे हैं, है ना, हम उसके बिहेवियर पे काम कर रहे हैं। तो उन अलग अलग प्रोटोकॉल्स को फिट किया जाता है और साथ में जो ब्लड वर्क होता है हमें सपोर्ट करता है। तो ब्लड वर्क के सपोर्ट के साथ वो जो सिम्टम्स होते हैं उनको देखते हुए एज अ बायोमेडिकल प्रैक्टिशनर मैं न्यूरोडाइवर्स, ये ऑटिज्म बच्चों में, ADHD बच्चों में, उनमें हेल्प करता हूँ। ओके। सो सर क्या कोई ऐसी मेडिकेशन है जो हम हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए या ऑटिज्म रिड्यूस करने के लिए दे सकते हैं? क्योंकि जनरली अगर पेरेंट गूगल पे करते हैं तो उन्हें दिखता है कि ऑटिज्म का तो कॉज ही नहीं पता, इडियोपैथिक है। तो मेरे को ये दिखा था गूगल पे बहुत सारी मेडिकेशन होती है, बट कौन सी रिलायबल है
अब जैसे आप बीइंग अ प्रोफेशनल आप बेटर बता सकते हैं कि रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है, और क्या ये चीज़ है कि मेडिकेशंस हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन कंसर्न हो जाता है एक पेरेंट का। अब एज अ साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ हैं जो आप ऑटिज्म में भी लिखते हो और एडीएचडी में भी लिखते हो। ऑटिज्म में 2 दवाइयाँ अप्रूव्ड है एफडीए की, रिस्पेरिडोन और एरिपेप्राजोल। आप उन्हें देते हो, पर्पस होता है कि बिहेवियर के देना होता है, बिहेवियर कंडीशंस के लिए 5 ईयर्स की एज ऑनवर्ड्स वो अप्रूव्ड है, वो आप दे सकते हो। वेरी क्लियर। नाउ ऑटिज्म एडीएचडी के अंदर और भी दवाइयाँ हैं जो आप देते हो, जिसमें स्टूमुलेंट्स हैं, जैसे मिथाइलफेनिलेट है जो हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, और नॉन स्टूमुलेंट्स है, एटोमॉक्सिटीन है ना, क्लोनिडीन है, जो आप दे सकते हो इन बच्चों के अंदर। तो ये साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जो साइकोट्रॉपिक एजेंट्स हैं, जिनको देख के आप बच्चे के ट्रीटमेंट कर सकते हो, उनके बिहेवियर्स पे, उनके हाइपर एक्टिविटी पे, अटेंशन स्पैन पे, और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। हमारी इंडियन गाइडलाइंस भी है, अमेरिकन गाइडलाइंस भी है, यूके गाइडलाइंस है, जो कहती है इनको आप दे सकते हो, लेकिन आपको माइल्ड केसेस में नहीं देना चाहिए, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में देना चाहिए। करेक्ट। आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर देना चाहिए, उसके बाद एक बार डिसकंटिन्यू करके देखना चाहिए कि क्या आगे इनको ज़रूरत है या नहीं है। तो ये हो गया आपका साइकोट्रॉपिक्स का, जो दवाइयों वाला आ गया। वेरी क्लियर, दैट्स व्हाट। जो मैं अप्रोच फॉलो करता हूँ वो मैं बायोमेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह फॉलो करता हूँ, जो ऑटिज्म बच्चों के अंदर, जहाँ पे हम बायोमेडिकल इश्यूज को एड्रेस करते हैं, है ना, जिसके अंदर गट इश्यूज को, मेटाबॉलिक इश्यूज को, अपने मिथाइलेशन इश्यूज को, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, डिटॉक्सिक पाथवेज को, उनको एड्रेस करते हैं। वो हमारा एक अलग पाथवे होता, अलग मॉडल है, जिसको हम एड्रेस करते हैं थ्रू बायोमेडिकल पाथवेज और इंटरवेंशंस के थ्रू। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। जो लोग दोनों को कंबाइंड प्रैक्टिस करते हैं वो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, जिसमें आप साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट भी चल रहे होते हैं बच्चों के, या पहले से चल रहे होते हैं, लो डोज चल रहे होते हैं, उसके ऊपर आप बायोमेडिकल इंटरवेंशन ऐड करते हो। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रैक्टिस, चाइल्ड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड साइकेट्री। तो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या है। वेरी क्लियर। तो इस अप्रोच के थ्रू आप बच्चे का इंटरवेंशन करते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स की एजुकेशन और पेरेंट्स की अवेयरनेस। अगर पेरेंट की अवेयरनेस होगी तो आपका कंप्लायंस बेटर होगा। अगर पेरेंट की अवेयरनेस होगी तो वो आपके साथ मिल के काम करेगा प्रॉपरली, क्योंकि वो गूगल पे जाएगा, इतना कुछ होगा, या बहुत लोग कहेंगे ये क्यों कर दिया जी, ये क्यों कर दिया, तो वो कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद वो बंद कर देगा। जब भी कोई ट्रीटमेंट चलाया जाता है, याद रखिए डॉक्टर के साथ मिल के चलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब शुरू करते हो तो हो सकता है शुरू में भी वो ट्रीटमेंट सूट नहीं करे उसे, या शुरू में दवाई की डोज कम ज़्यादा करनी पड़ जाए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना और उसके साथ मिल के काम करना। ये नहीं कि आपने पहला प्रिस्क्रिप्शन लिखा वो बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन होगा, नहीं। कुछ बच्चों के लिए पहले प्रिस्क्रिप्शन में फायदा होने लग जाता है, कुछ बच्चों में प्रिस्क्रिप्शन को सेट किया जाता है, धीरे 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 दवाई की मात्रा को कम ज़्यादा की जाती है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग 1 या 2 प्रिस्क्रिप्शन के बाद ड्रॉप कर जाते हैं, इसीलिए उनको डर लगता है, उनको लगता है क्या हो गया। नहीं, डॉक्टर बच्चे को समझ के, आपकी बातों को समझ के एक प्रिस्क्रिप्शन बनाता है। उस प्रिस्क्रिप्शन को शुरू करते हो आप लोग, उसमें थोड़ी बहुत उथल पुथल आती है, थोड़े स्पीड ब्रेकर गड्ढे आते हैं, लेकिन हमें अगर मैराथन दौड़नी है, लंबे हाईवे पे आगे तक जाना है, तो हमें मिल के जुल के काम करना होता है। आप जल्दी टूट जाओगे तो फिर क्या होगा ना, सबसे ज़्यादा है वो बच्चा, जिसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमें मिलजुल के बच्चे को फ़ायदा देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरे को यहाँ पे MS धोनी सर की एक बात याद आ गई कि कंसिस्टेंसी इज द की। वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। कभी कभी हम 0 पर भी आउट हो जाते हैं, और कभी कभी हम लगातार हमारे अच्छी सेंचुरी चलती रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम 0 पे आउट हो गए या 1-2 बार तो कि हम अच्छे प्लेयर नहीं हैं। लेकिन हमें सोचना है कि उस दिन क्या हुआ था हमारे साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर अब जैसे आपने बताया कि मेडिकेशंस वगैरह के साथ हम चीज़ें रिड्यूस कर सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी की और सेंसरी इश्यूज वगैरह भी, तो ठीक है, एक चीज़ की पेरेंट बीइंग अ पेरेंट उन्हें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने अभी इतनी क्लियरली बताया कि कैसे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एक बच्चे को ज़्यादा बेटर पहुँचा सकती है, बेटरमेंट कैसे कर सकती है। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो पेरेंट के माइंड में चलती हैं कि अगर हम लगातार दवाई खा रहे हैं तो आर देयर एनी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और माई चाइल्ड फॉल सिक फ्रीक्वेंटली, और बच्चा बीमारी होता जा रहा है, दवाई खा रहा है, ठीक हो रहा है, फिर बीमार हो जाता है।
तो कोई सेफर ऑल्टरनेट है इसका, अगर हम देखें कि क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि आपका बच्चा जिस डॉक्टर के पास जाता है, पीडियाट्रिशियन के पास जाता है, अब उससे डिस्कस करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा कि इम्यूनिटी पुअर है। कैसे हम उसकी इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं? चाहे न्यूट्रिशन से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, या कुछ सप्लीमेंट दे के कर सकते हैं, है ना। किस क्या वजह है, कोई कारण होगा, तो उस कारण के थ्रू हम बच्चे की इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि जब एक बार बीमार पड़ जाएगा, इन्फेक्शन सीवियर हो गया, तब तो डॉक्टर को एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट। हमारे बच्चे, कुछ बच्चे जो होते हैं, जो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के बच्चे होते हैं, वो बहुत बार जब उनको एंटीबायोटिक दिया जाता है तो कभी कभी उनका बिहेवियर खराब हो जाता है। वो थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं, थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, कईयों की लाफिंग बढ़ जाती है, कईयों में एग्रेशन, कई को स्लीप प्रॉब्लम्स आ जाती है। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे हमने देखा कि उन बच्चों को साथ में अगर प्रोबायोटिक का कवरेज दिया जाए डे 1 से, तो उनसे वो चीज़ों को बचाया जा सकता है। तो प्रोबायोटिक के कवरेज एंड प्रोबायोटिक बच्चों को हेल्प भी करता है, उनके गट को हील भी करता है। तो उस तरह हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके सवाल का है कि हम उनकी इम्यूनिटी को एनहांस करें। और जिस तरह के फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में रहते हैं, चाहे इतने पॉल्यूशंस हैं, इतने टॉक्सिक्स हैं फैले हुए हर जगह, चाहे वो हमारा पानी हो, चाहे हमारी हवा हो, चाहे हमारी मिट्टी हो, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर बच्चों की जो अभी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, उस वक्त बच्चे की इम्यूनिटी के लिए हमें अलग अलग स्टेप्स उठाने चाहिए और हमें बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। तो सर, अभी जैसे कोई बच्चा कभी भी बीमार पड़ता है तो पेरेंट ये बोलता है कि ठीक है, हमने दवाई वगैरह दी, और बच्चे में ना रिग्रेशन बहुत आता है कि हम कंटिन्यूस थेरेपी करा रहे हैं बच्चों की, हम दवाई ले रहे हैं, बट बीमार पड़ गया, हम वो बहुत रिग्रेस फेज में चला गया। तो उसके लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं? देखिए, इसका एक रीज़न है समझना कि क्यों होता है। एज ए बायोमेडिकल प्रैक्टिशनर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब भी बॉडी पे लोड आता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पे लोड आता है, उस वक्त बच्चे रिग्रेस करते हैं। और चाहे वो इन्फेक्शन हो, फीवर्स होते हैं, और जब उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं बहुत बार, तो उस तरह, तो जब भी उनके माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लोड आता है, तो उससे वो बच्चे स्लिप कर जाते हैं नीचे। अब बहुत बार अक्सर ये देखोगे, पेरेंट्स बताएंगे कि बुखार आया, बच्चा डाउन हो गया, या बच्चे को फीवर आया, वो डाउन हो गया, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, वो डिप कर गया, बच्चे को एंटीबायोटिक दी, उसका बिहेवियर खराब हो गया। तो इस तरह के पॉइंट जो आते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें समझना है कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसे पहले मैं कह रहा था अभी कुछ सेकंड पहले, एक तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर हमें लगता है कि जब भी इन्फेक्शन आता है बच्चा डिप कर सकता है, तो हम इस तरह, तो कुछ हम सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम देते हैं ताकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसमें हम कोक्यूएंजाइम 10 देते हैं ताकि वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट कर सके और ताकि बच्चे के अंदर रिग्रेशन ना आए, वो चीज़ दी आती है। तब जब एंटीबायोटिक देते हैं तो हम प्रोबायोटिक देते हैं साथ में, ताकि वो गट को ऑल्टर ना करे और बच्चे के अंदर बिहेवियरल रिग्रेशन ना आए। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखनी हमारे को इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हम बच्चे के रिग्रेशन को बचा सकते हैं। बहुत बार अगेन वेदर, बहुत पेरेंट्स, बहुत थेरेपिस्ट नोट करते हैं, बहुत पेरेंट्स नोट करते हैं कि जब भी वेदर चेंज होता है बच्चे के अंदर रिग्रेशन आ जाता है, खासकर जब समर से विंटर में आता है तो बच्चे, तो क्योंकि जो वेदर है वो कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लोड डालता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लोड डालने से बच्चे के अंदर ऑल्ट्रेशंस आती हैं। उस वक्त अगेन अगर हम पहले से ही CoQ10 डालते हैं, जैसे कोएंजाइम Q10 हो गया, तो उससे क्या होता है, वो बच्चे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट जो मिलता है, तो बच्चे का रिग्रेशन मिनिमल होता है, या होता बहुत मिनिमल होता है, या फिर नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनका हम ध्यान रख सकते हैं, चाहे वेदर हो, चाहे इन्फेक्शंस हो, चाहे फीवर हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, ये सारे फैक्टर्स को अगर हम करेंगे, तो इसीलिए इन सबको अगर हम रेगुलरली डालते हैं तो डेफिनेटली बच्चे की थेरेपी से भी और इम्प्रूवमेंट आती है। क्योंकि अगर बच्चा आगे बढ़ और डिप कर जाए तो फिर हम 2 कदम आगे गए, 1 कदम नीचे आ गए, फिर वो 2 कदम आगे जाता, फिर 1 कदम नीचे आ गया, तो आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे, हमारा ग्राफ तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा पूरा। इनफैक्ट जो ग्राफ 2-2-2 करके 2 4 6 8 10 12 होना चाहिए, 2-1 2-1 2-1 करते करते उसी में डिप करता रहता है। देप इसीलिए जो किसी बच्चे में रिग्रेशन हो, कभी भी उसको लाइटली मत लीजिए, उसको समझिए क्या कारण है, और फिर
जो डॉक्टर, मुझ जैसे डॉक्टर जो उस फील्ड में काम करते हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, उनके साथ डिस्कस करके उन्हें एड्रेस किया जाए। यही मैं इस माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। मैं तो रिग्रेशन को बहुत सीरियसली मानता हूँ। अगर किसी बच्चे में थोड़ा सा भी रिग्रेशन आता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा अलर्ट साइन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यस, उसको इमीडिएटली एड्रेस करा जाए, उसको रोका जाए। हमारे पास एक बच्ची है जो बार बार रिग्रेस कर रही थी इतनी मेहनत करने के बाद। हमने उसके और मेहनत करी, उसके साथ हमने सप्लीमेंट चेंज करे, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को और सपोर्ट किया। अब जाके पिछले 8 महीने से उसके अंदर रिग्रेशन नहीं आ रहा। अब उसकी धीरे धीरे स्पीच बढ़ती जा रही है और उसका आई कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है। अब वो मोर सोशली अवेयर हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वरना वो बार बार रिग्रेस कर रही थी। इसीलिए हमें समझना है हमारे बच्चे को, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है। ठीक है। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था सर, जिसका आपने इतने अच्छे से, इतने इलेबोरेटेड वे में हमारी ऑडियंस को जवाब दिया कि जैसे आप लोगों ने सुना कि कितना बड़ा अलर्ट साइन है अगर कोई भी रिग्रेशन होता है, तो आप तुरंत उस चीज़ में, जैसे सर ने बताई, जितनी भी हम चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के लिए या फिर जो भी चीज़ें सर बता रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, ताकि अभी तक जो हुआ ठीक है, लेकिन आगे चल के वो चीज़ कभी आगे आपको ऑल्टर ना करें। और मैं आपके पॉडकास्ट से मैं चाहूँगा ये पॉडकास्ट जगह जगह पहुँचे और खासकर थेरेपिस्टों तक पहुँचे, क्योंकि आप लोग इतने सीनियर थेरेपिस्ट हैं जो मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, और क्रिएटिव माइंड इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहा है प्रियंका सिंह के अंडर। सो मैं तो ये कहूँगा कि ये पॉडकास्ट जितने थेरेपिस्ट तक पहुँचे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और थेरेपिस्ट से पूछते हैं सवाल, और थेरेपिस्ट को इन सवालों का जवाब होगा तो वो हमारे साथ मिल के काम करेंगे। इसी को मैं मानता हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच। मैं मानता हूँ इस फील्ड के अंदर कोई अकेला बादशाह नहीं है। हम सब सेवक हैं इन बच्चों के, हम सबको मिलके इकट्ठे सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल सर। अगर हम इकट्ठे मिलके करेंगे तो हम बच्चों में जीत सकेंगे। तो ये थेरेपिस्ट का और हम जैसे प्रोफेशनल्स का मिलके काम होना चाहिए, इकट्ठे काम। तो उसी को मैं मुट्ठी मानता हूँ। बहुत बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। एक चीज़ मेरे को सर जो इतने टॉपिक में समझ आई कि हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स या ये चीज़ करके हम दे सकते हैं। तो मतलब अगर हम ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं लेमैन की तरह देखूँ एक, तो मेरे को समझ आ रहा है कि हमारा गट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें। एब्सोल्युटली। और कई पेरेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है सर कि हमें बच्चे को चीनी देनी है कि नहीं देनी, हमें बच्चे को मीठा खिलाना है नहीं खिलाना, क्योंकि जनरली थेरेपिस्ट और जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो सब यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई बच्चा हाइपर है या कोई बच्चा भागता रहता है, बैठता नहीं है, मीठा कम करो, क्योंकि जनरल साइकिल हम सबने बढ़िया, एड्रेनलिन रश और डोपामीन। लेकिन अगर किसी बच्चे को जैसे सेम गट इशू है या उसका कोई प्रॉपर ऐसे डाइट प्लान होता है सर, कुछ ऐसे GFCF या ऐसे कुछ भी एक डाइट प्लान, एक बेसिक, कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, गट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी देखिए, अगर आपका गट ठीक नहीं है आप भी परेशान हो जाएंगे, आपको भी थोड़ी ब्रेन फॉगिंग लगेगी, आपकी भी अलर्टनेस कम हो जाएगी। तो फिर बच्चों का क्या हाल होता होगा? इसलिए गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो एज अ बायोमेडिकल प्रैक्टिशनर जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेन होता है गट को हील करना। तो पहला स्टेप है गट को हील करना। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, वो सब इंपॉर्टेंट है, उन सब का ध्यान रखना। तो अगर गट ठीक, अगर आप देखेंगे, बहुत बजे से आप मुझसे सिम्टम्स पूछ रहे थे, आप देखेंगे ये बच्चे होंगे, इनको दर्द आ रहा होगा, ये उल्टा पेट के बल लेट के इनको अच्छा लगता होगा, जो सेंसरी बॉल आती है उसी पे उल्टा लेट के चाहते, रोल ही करते रहो बार बार पेट के बल। क्यों? क्योंकि इनको पेट के ऊपर अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास बच्चा है जो पेट के बल लेट के सेंसरी बॉल को छोड़ना ही नहीं चाहता, तो उसको गट इश्यूज है। करेक्ट, दैट्स व्हाट। तो आप देखेंगे अगर उसको उकड़ू बैठ के, जैसे काग आसन होता है या उसमें बैठ के उसको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब उसको गट इश्यूज है। रात को बार बार उठता है, वो 2 बजे 3 बजे उठ के परेशान हो रहा है, तो उसको गट इश्यूज है। तो ये सटल सिम्टम्स, सटल वो हैं जो हिस्ट्री में आप पकड़ सकते हैं। उसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, रोज पेट साफ नहीं हो रहा, रोज पेट अगर साफ नहीं हो रहा, या उसको ब्लोटिंग हो रही है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया हो रहा है, बहुत स्मेल आती है, फ्लश कर रहे हो 2-2, 3-3, 4-4 बार, तब भी पॉटी फ्लश में नहीं निकल पा रही है, बस ठीक है, आप बाथरूम वॉशरूम में एंटर करने में आपको इतना वो लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर गट इश्यूज हैं। दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट। तो उन गट को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गट को एड्रेस करिए, आप देखेंगे बच्चे के अंदर हीलिंग बेटर हो जाएगी।
इसलिए जैसे मैंने बोला गट को सेकंड ब्रेन किया जाता है। क्योंकि वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो गट है वहां पे इतने हजारों न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोकेमिकल्स बनते हैं, इतने ज्यादा, तो सारे जो ब्रेन तक जाते हैं, जो वेगस नर्व के थ्रू जाते हैं, तो गट और ब्रेन का कनेक्शन चलता रहता है ना। ये मैं बार बार अलग अलग इंटरव्यूज में बोलता रहता हूँ ये, कि गट और ब्रेन का एक कनेक्शन चलता रहता है। गट से सिग्नल ऊपर जाते हैं, ब्रेन से सिग्नल नीचे आते हैं, तो वो सारे हेल्दी सिग्नल ऊपर जाने हैं और हेल्दी सिग्नल नीचे आने चाहिए। दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बॉडी के अंदर जा रहा है, पेट के अंदर, बॉडी में जा रहा है, पेट में जा रहा है, वो गट तक सही चीज पहुंचनी चाहिए। अब उसमें ग्लूटेन है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव एंड प्रोडक्ट्स फूड्स हैं, पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, कैन प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें, शुगर एंड शुगर एडिटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे गट को अल्टर करती हैं। तो मैं संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि अगर इनको हटाने से हमारा गट हील करता है, इसका मतलब नहीं कि हम बच्चे को भूखा रख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, इतने ऑल्टरनेटिव हैं जो हम दे सकते हैं। तो अगर इनको हटाने से हमारा गट हील कर रहा है, प्रोबायोटिक देने से हमारी गट की लाइनिंग स्ट्रांग हो रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स देने से हमारे गट के अंदर डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, तो क्यों ना करा जाए। तो जब गट हेल्दी होगा, गट की लाइनिंग हेल्दी होगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स प्रॉपरली होंगे, सिग्नल पॉजिटिव ऊपर जाएंगे, जिसको लोग लीकी गट भी बोलते हैं, लीकी गट सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अंदर जो अलग अलग जो ओपनिंग्स होती है वो खुल जाती हैं, तो प्रोबायोटिक्स के थ्रू वो हील होता है। और उसके बाद इसके बाद हमारे गट की लाइनिंग जब स्ट्रांग हो जाती है, जो केमिकल्स होते हैं सही केमिकल्स पहुंचते हैं ब्रेन तक, तो इनफैक्ट हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहता है, हमारी डेवलपमेंट भी हेल्दी होती है। तो मैं ये इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, अच्छा खाइए, है ना। तो पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा तन, तो वो हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल देखिए प्रिजर्वेटिव प्रोसेस पैकेज फूड्स का एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर रहता है, जंक फूड का WHO भी बार बार वार्न करता रहता है। तो हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, कि कैसे हम इन चीज़ों को बच्चों की लाइफ से दूर रखें। और इन बच्चों को, और खासकर ऑटिज्म बच्चों में देखा गया है, ADHD बच्चों में देखा गया है कि जब हम डाइटरी पैटर्न फॉलो करते हैं तो उनसे फ़ायदा होता है। अब डाइट में जैसे अंकुर पूछ रहे थे, अलग अलग डाइट्स भी हैं। एक डाइट हो गई सिर्फ आपने प्रिजर्वेटिव प्रोसेस पैकेज फूड बंद किया, आपने शुगर बंद किया, एक वो बेसिक सिंपल है। फिर दूसरा है आपने ग्लूटेन बंद किया, गेहूँ बंद किया, गेहूँ के प्रोडक्ट्स बंद करें, और आपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद किए, जिसको केसिन फ्री डाइट बोला जाता है। फिर एक होता है आपकी अलग डाइट, ईस्ट डाइट है, केंद्र डाइट है, जहाँ पे आप वो प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हो जिससे गट के अंदर ईस्ट और फंगल इश्यूज ना बढ़ जाए। तो उस तरह स्पेसिफिक डाइट्स हैं। फिर एक बॉडी इकोलॉजी डाइट है। तो अलग अलग डाइट है जो बच्चे के हिसाब से, बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से वो डाइट रिकमेंड करी जाती है। और यस, पेरेंट्स को क्लियरली बोला जाता है, जब आप डाइट फॉलो करें प्लीज मेंटेन अ डायरी। आप मेंटेन करिए डायरी को, उस डायरी को फॉलो करिए, और तब आप डॉक्टर को बताइए कि इस डाइट को फॉलो करने के बाद क्या फायदा हुआ। इंपॉर्टेंट है 100%। इसमें आप कोई कंजूसी नहीं कर सकते, कोई चोरी नहीं कर सकते। अगर आप 100% डाइट करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा, और वो तभी पॉसिबल अगर माँ बाप भी उसे फॉलो करें, या घर में वो कल्चर बनाया जाए। अगर घर में वो कल्चर बनाया जाएगा और बच्चे के साथ आप फॉलो करेंगे, तभी आप अपने बच्चे के साथ 100% फॉलो कर पाएंगे, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और आप देखेंगे कि उससे बच्चों को फायदा होगा। तो आज से नो जंक फूड, नो पिज्ज़ा, नो बर्गर। सो सर, एक चीज़ मेरे को इसमें बहुत अच्छी जानने की मिली, जैसे आपने बताया कि WHO की भी ये गाइडलाइंस है, और आजकल मीडिया के थ्रू ना ये बहुत हाइप बना दी गई है कि हमें जंक और प्रिजर्वेटिव्स और ये सब लेने की, तो बच्चे इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बट यस, जैसे सर ने बताया, बीइंग अ पेरेंट हमें ये ध्यान रखना होगा कि खाली बच्चे ही नहीं, हमारे घर का कल्चर भी वैसा हो जिसमें हम इस चीज़ का ध्यान रख पाए। हमें भी शायद अडाप्ट करनी पड़े वो चीज़, और हमारे लिए भी टफ होगा, लेकिन वो एक बेटर सोसाइटी तभी मिल पाएगी हमें। एब्सोल्युटली। जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, अब इतना ज़्यादा आ रहा है स्क्रीन टाइम के बारे में, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। खान पीन के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्लीप पैटर्न का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पॉल्यूशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसके इतने एविडेंस हैं। और छोटे बच्चे, 2, 4 साल, 5 साल के बच्चे, जिनकी डेवलपमेंट अभी हो रही होती है, और सोचो उस स्टेज में उनके हार्म हो रहा है, उनकी डेवलपमेंट में अबरेशंस आ रहे हैं, उनकी डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री जो है वो ऑल्टर हो रही है, तो फिर वो भविष्य है, वो फ्यूचर है,
हमें उनका अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। हम अभिभावक की, हम डॉक्टर्स की, हम फिजिशियन की जिम्मेदारी है कि हम ध्यान रखें। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने 2 पल के उस स्वार्थ के लिए उन बच्चों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि प्लीज़ कॉन्शियस होके दें, लेकिन हेल्दी दें। बहुत कुछ अवेलेबल है। आज से 30 साल 40 साल पहले जो हम हेल्दी खाना खाते थे, जब ऑटिज्म की मात्रा बिल्कुल मामूली सी थी, प्लीज़ उस सब चीज़ों का ध्यान रखें। वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें ध्यान रखना कि कैसे हम उसका सोर्स कर सकें। अपनी किचन में वो सामान रखें, अगर वही का सामान होगा तो वही बच्चों को खिलाएंगे। सर, इसमें अगर बच्चे को बहुत पिकी ईटर है बच्चा, तो क्या उस केस में हम कुछ ऐसा जनरल प्रोटीन रिच या कुछ ऐसा कुछ दे सकते हैं कि ऑल्टरनेट? आप वो दे सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है पिकी ईटर बच्चे में उसका पेट हील करिए। ओके। अगर उसका पेट हील होगा तो चीज़ें इंप्रूव करने लग जाती हैं, मैंने देखा है। हाँ, साथ में डेफिनेटली प्रेशर में बताइए, धीरे 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 आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस करिए। आप उसके अंदर अलग अलग वैरायटी इंट्रोड्यूस करिए, अलग अलग मसालों के साथ इंट्रोड्यूस करिए, है ना, अलग अलग चीज़ों को इंट्रोड्यूस करिए। बहुत बहुत ऑप्शंस हैं। आप बहुत चीज़ें पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। तो धीरे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो धीरे 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 आप देखेंगे उसका जो पिकी ईटर वाला पैटर्न है वो टूटने लग जाएगा। और वहाँ पे आपका डॉक्टर, आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको अच्छी तरह अच्छी सलाह देगा और आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा। और आप बाकी पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं, जो वो भी आपको गाइड करेंगे। सर, एक पेरेंट था अभी रिसेंटली, उसकी ना बहुत अच्छी क्वेरी थी और उसमें मेरे को लगता है कि बहुत स्पेसिफिक होकर उसने हमसे पूछा था कि उनकी एक 10 साल की बेटी है। उसने अर्ली इंटरवेंशन वगैरह करा, वो डाइट का भी प्रॉपर तो नहीं बट हाँ मोस्टली ध्यान रख रही है, बट उससे ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होते हैं। और ये मेरे को लगता है कि जनरल पेरेंट्स की भी ये क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चा ना बहुत कभी खुश रहता है, कभी बहुत गुस्सा करता है, चीज़ें तोड़ता रहता है, गिरा देता है, फेंक देता है। और ये बहुत पेरेंट्स का होता है कि टेम्पर टैंट्रम शो कर रहा है। तो सर, क्या ये हार्मोनल इशू हो सकता है? और अगर ये जो फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होते हैं, इसे हम टैकल कैसे करें? देखिए, आपको समझना है कि हर चीज़ हार्मोनल नहीं है। और ये नहीं कि एडोलेसेंट है, टीनेजर है तो उससे हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे को समझना। अगर किसी बच्चे के अंदर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हो सकता है वो घर के माहौल की वजह से हो रहा हो। घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, घर में फाइट्स होती हो, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, जो आजकल देखें बढ़ता जा रहा है। उसको देख के बच्चा परेशान हो रहा हो, या बच्चे के साथ स्कूल के अंदर कुछ गलत हरकत हो रही है, बुली हो रहा हो बच्चा, या बच्चे ने मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसा कुछ देख लिया है, या ऐसा कुछ विटनेस करा है, या उसके साथ कोई मजाक उड़ाया जिसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। वो सारे कारण हो सकते हैं। या पड़ोस में कोई अंकल हो सकते हैं, या आसपास पड़ोस में जो उसको तंग कर रहे हो, जो उसने किसी को बताया ना हो। तो इंपॉर्टेंट है पहले बच्चे को समझिए। अब लेबल मत दीजिए कि हार्मोन है, या ये चीज़ है, या वो चीज़ है। अपने बच्चे से बातचीत करिए, उससे बातचीत के चैनल्स खोलिए, उसको समझने की कोशिश करिए क्यों उस बच्चे को दिक्कत आ रही है। दुनिया भर में डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ता जा रहा है, और कोविड के बाद तो उसने बहुत छलांग ली है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी छलांग ली है, इतनी बड़ी वो ही है। तो इंपॉर्टेंट ये है, अपने बच्चे को समझिए। हाँ, उसके बाद जैसे अंकुर कह रहे थे, हाँ बाकी कारण हो सकते हैं, उन कारण को समझने की कोशिश करिए, जिसके अंदर एक कारण है प्यूबर्टी और हार्मोनल। अगर वो चीज़ है तो उसको अलग से एड्रेस किया जा सकता है। तो अलग मल्टी फैक्टर्स हैं, उन मल्टीपल फैक्टर्स है। हो सकता है वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया होगा तो उसको डिप्रेशन का इलाज कराना पड़ेगा, या उसको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया तो उसका इलाज कराना पड़ेगा, है ना, या उसको कोई चीज़ की एडिक्शन लग गई है, जिसको आजकल इंटरनेट एडिक्शन या साइबर एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन बोला जाता है, उसकी लत लग गई है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। तो उस चीज़ को पहचान के डॉक्टर की मदद लेके, साइकेट्रिस्ट की मदद लेके आप उसको हेल्प कर सकते हैं, काउंसलिंग के थ्रू और दवाइयों के थ्रू, और बच्चे को बढ़िया किया जा सकता है। दैट्स व्हाट। तो अलग अलग, जैसे बुखार है, बुखार के अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो हमें पहचानना है क्या कारण है और उसको एड्रेस करना जरूरी है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, और ये जैसे आपने अभी बताया कि कोविड के बाद ना बहुत पॉपअप हो गया है कि जनरली लोगों ने कोविड में क्या किया कि सब घर पे थे, सब घर पे बंद थे। तो जो एक्सपोजर हमें उस टाइम मिला, हम लोग बाहर जाते थे, पार्क जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। बच्चे उस टाइम, जो भी छोटे बच्चे थे, वो घर पे रह गए, घर पे ही रहे।
और घर पे जनरली उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने फ़ोन स्क्रीनिंग, पापा मम्मी टीवी देख रहे हैं या अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं, बच्चे को फ़ोन दे दिया कि ठीक है जाओ फ़ोन में खेलो। और जनरली पेरेंट्स की कंप्लेंट आई है कि मेरा बच्चा तो पहले बोलता था, पहले सब करता था, अब इसने बोलना छोड़ दिया, अब इसने कुछ करना छोड़ दिया। तो जो एक टर्म वर्चुअल ऑटिज्म बहुत आजकल पॉपअप हो रहा है सर, उसके बारे में कुछ अगर एनलाइटन करिए कि सर उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, वर्चुअल ऑटिज्म कोविड के बाद नहीं आया। वर्चुअल ऑटिज्म को 2017-18 में कॉइन कर दिया गया था। इसका मतलब पहले भी था। हाँ, कोविड में और कोविड के बाद उसको ज्यादा देखा गया, वेरी क्लियर। तो इसका मतलब पहले भी था। और WHO ने 2019 में गाइडलाइन दे दी थी स्क्रीन टाइम की, कोविड से पहले ही। कोविड तो मार्च 2020 में आया ना हमारे देश में जब आया। तो मेरा पॉइंट ये है, इसका मतलब पहले भी स्क्रीन इंपैक्ट कर रही थी बच्चों को, बच्चों की डेवलपमेंट को, वेरी क्लियर। तो वो चीज थी। तो एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमें ध्यान रखना है कि 2 से 3 साल से नीचे हमारे बच्चों की 0 स्क्रीन टाइम होनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 मतलब 0 स्क्रीन टाइम होनी चाहिए। 3 से 5 साल के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वो इंटरेक्टिव हो। अब 5 साल के बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है, कुछ काम असाइनमेंट मिलते हैं, तो छोटा बच्चा, लेकिन कोशिश करे बिल्कुल नीड बेस्ड हो, थोड़े जरूरत करने पे ही। अब जैसे वो हायर क्लासेस में जाता है, 2nd, 3rd, 4th में उसको असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसका स्क्रीन टाइम और बढ़ने लगता है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए, नीड बेस्ड देखते हुए, बच्चे की ज़रूरत देखते हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट है लिमिटेड टाइम रखें। यही गाइडलाइंस कहती है कि जितना लिमिटेड रख सके उतना जरूर उतना रखें, ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना कराएं। इंपॉर्टेंट है कि वो लिमिटेड अनलिमिटेड बन जाता है, और वहाँ पे चैलेंज आता है। और वहाँ पे वो धीरे धीरे वो बॉडी को, बॉडी के पोस्चर्स को, बॉडी की हेल्थ को, आपकी स्लीप को, आपकी मेंटालिटी को, आपकी साइकी को, सबको इम्पैक्ट करने लग जाता है। तो इसीलिए जितना आप उसको रेगुलेट कर पाएंगे उतना वो इम्पॉर्टेंट है, और जितना शुरू से करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अलग अलग गाइडलाइंस कहती हैं कि 2 से 3 साल के नीचे बिल्कुल 0 स्क्रीन टाइम, नो मर्सी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि 2 से 3 साल, फर्स्ट 1000 डेज एब्सोल्युटली नो स्क्रीन टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों दिखाना आपको स्क्रीन टाइम पहले 1000 दिन? अलग अलग लोग, अलग अलग डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, पॉलिसी हेल्थ मेकर, पब्लिक हेल्थ पीपल बार बार कह रहे हैं पहले 1000 दिन में प्लीज 0 स्क्रीन टाइम कर रखिए, ताकि बच्चों की नेचुरल डेवलपमेंट हो, बच्चों को एक स्टिमुलेशन मिले, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैं इसी माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ खेलिए, इंटरेक्ट करिए, बातचीत करिए, बच्चों के बचपना को एंजॉय करिए। वो दिन कभी नहीं आएंगे दोबारा। सर बहुत खूबसूरती से आपने हमें समझाया कि कैसे एक टेबल वाइज कि हमें कितने टाइम में, बिल्कुल जैसे सर ने बोला कि स्टार्टिंग 1000 डेज, दोज आर द बेस्ट डेज। एक बच्चा ब्लैंक बुक होता है, आप जो लिखोगे उसमें वो वही बनता चला जाएगा। तो सर ने जितनी खूबसूरती से हमें समझाया कि कैसे हम उसकी डेवलपमेंट बेटर कर सकते हैं ताकि हम अपना फ्यूचर बेटर करें सर। तो सर लास्टली मेरे को एक चीज़ सर बहुत बहुत मन थी आपसे पूछने की कि सर so many years of experience, so many places, India, UK, so many places, USA. So sir, how was your journey with these kids and generally? देखिए, इसका सिंपल, उम्मीद की मेरे पता का बहुत सीधा साधा आंसर होता है, बट मैं यही कहना चाहूँगा, बड़ा लंबा सफ़र रहा है पिछले 27 साल का। 97 में मेरा सफ़र शुरू हुआ इस फील्ड के अंदर। तो 27 साल में बड़ा सुनहरा सफ़र रहा है। इस सुनहरे सफ़र में बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने गाइड करा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग रहा। मेरे परिवार ने बहुत मुझे सहयोग दिया, मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए और उसके अंदर मैं आगे बढ़ता रहा। और इस सफ़र में मैंने एक चीज़ सीखी कि जो कुछ सीखा है वो लोगों को बताओ, अपने तक मत रखो, है ना। जो आपको समझ में आ रहा है अच्छी चीज़ें, जो आपको समझ में आ रही है अच्छी बातें, जिनसे बच्चों को फ़ायदा होता है, वो दुनिया तक लेके जाओ, अपने तक सीमित मत रखो, क्योंकि लोगों को जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। तो जितनी आप जागरूकता क्रिएट करोगे, जितनी अवेयरनेस क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा ही सही एक्शंस ले पाओगे।
तो मेरे को ये समझ में आया कि यस, कि लोगों को बताओ। तो अपने आप में खुद अपने को सीखते रहो, अपने तजुर्बों से पढ़ के, लोगों के एक्सपीरियंसेस से, कॉन्फ्रेंस अटेंड करके लोगों से सीखो, अपने को सिखाओ, और जो सीखो और सिखाओ अपने आप को वो लोगों को बताओ, और सरल तरीके से बताओ, सरल तरीके से बताओ ताकि लोग उसको सरल तरीके से समझ सकें और उसको अमल कर सकें, है ना। अगर उनको सरल तरीके से समझ में आएगा तभी वो अमल कर पाएंगे। और आखिरी चीज, कभी माँ बाप को, अभिभावक को डराओ मत, न कभी डराओ, न कभी उन्हें धमकी दो, न कभी उनमें हीन भावना आने दो, है ना। जो चीज नहीं हो चुकी, अब क्या करना है ना। और प्रभु हमेशा रास्ते खोलेगा। तो मैं उस प्रभु का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे सफर पे चलने का मौका दिया और आगे भी हिम्मत देगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्रिएटिव माइंड फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू अंकुर फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू। सो इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन जो हमने डॉक्टर दीपक गुप्ता सर के साथ किया, और हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें जानने को मिली। एंड टू द ऑडियंस, रिमेंबर, नॉलेज इज पावर, एंड इफ विल स्टे इन्फॉर्म्ड एंड प्रोएक्टिव अबाउट आवर हेल्थ, विल स्ट्राइव फॉर अ बेटर फ्यूचर। सो if you enjoyed this video, do subscribe and do tell us your feedback in your valuable comments, क्योंकि उसी से हम आगे बेटर वीडियोस, जो चीज़ें आपको और जाननी है, हम वो एड्रेस कर पाएंगे। Moreover, this is Ankur signing off. Until next time, stay tuned, stay focused, and take care.